First of all, good morning to all of you. Today, we will read about the condition of agricultural sector on the eve of independence. यानी कि आज़ादी के पहले एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या स्थिति थी, उसके बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके पहले उस समय जो स्थिति थी हमारे देश की, उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको दी गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रिटिश जो थे उन्होंने हमारे देश को कॉलोनी बना कर रखा था एंड दे रूल्ड ओवर मैनी ईयर्स। तो ड्यू टू दिस रीज़न एंड एज द एक्सप्लॉयटेशन मेड बाय देम, आवर कंट्री suffers socially and economically. The farmers of our country are very poor. Some of the farmers who had a large part of land, they are called zamindar, rayatwar, mahalwar, etc. The Britishers always tried to force them to cultivate commercial crops, and therefore the production of grains was not so more according to the needs at that time. On the eve of independence, Indian agriculture sector has following characteristics. Number 1 is low production and productivity. Production is the total output and productivity is that, यानी कि जो भी टोटल प्रोडक्शन होता है, यानी जितनी भी वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन होता है तो उसे हम प्रोडक्शन कहते हैं। लेकिन यदि किसी ह्यूमन कैपिटल का कहें, लैंड का कहें, जो भी लिविंग बीइंग है, उनसे उनकी जो कैपेसिटी होती है प्रोड्यूस करने की, दिस इज नोन एज प्रोडक्टिविटी। तो इन टर्म्स ऑफ लैंड we can say that the output obtained per hectare of land, when the output obtained per hectare of land is more, then we can say that the productivity of land is very good, and vice versa. तो इस तरह से एग्रीकल्चर की जो कंडीशन थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वो बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि हमारे जो फार्मर्स थे उनके पास जो मीन्स थे कल्टीवेशन का वो उतने अच्छे नहीं थे। दे यूज्ड ओल्ड पैटर्न ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी एंड ड्यू टू दिस रीज़न the production and productivity both was very low. As you see that in 1947 the production or the productivity per hectare of land of wheat is 660 and of rice is 665 kg per hectare, but it increases in 2018 and 19. In terms of wheat it is 3408 and in terms of rice it is 2665. In this way we can say that the production
or productivity is very low at that was very low at that time. The next one is high degree of uncertainty. High degree of uncertainty means the production obtained by the land in terms of amount is not certain. Our farmers at that time and today also mostly depends on monsoon for their irrigation facilities. When the condition of monsoon is good, the productivity is good, and when monsoon is not favorable, then the productivity is not so good. The income of the farmers depends on the productivity and surplus depends on the productivity or the production of the crops. Due to high degree of uncertainty, the income of the farmers is also not certain. Next one is dominance of subsistence farming. Dominance of subsistence farming. At first, you have to know the meaning of subsistence farming. Subsistence farming is a form of farming in which the crops are produced to provide for the basic needs of the family. यानी कि इस फार्मिंग में क्या होता था, जो फार्मर्स थे वे अपनी फैमिली की जो बेसिक नीड्स है उसे फुलफिल करने के लिए ही क्रॉप्स का प्रोडक्शन करते थे, और ड्यू टू दिस रीजन द सरप्लस इज नॉट सो मोर विच दे सेल इन द मार्केट. They forced to produce commercial crops and therefore backwardness prevailed and poverty dominated. The next point relating to the feature of Indian agriculture on the eve of independence is gulf between owners of the soil and tillers of the soil. ऑनर्स ऑफ द सॉइल मीन्स जिन लोगों की ज़मीन होती थी उसे ऑनर्स ऑफ द सॉइल कहते हैं. दे वेर जमींदार, रैयतवार, महालवार. एंड द टीलर्स ऑफ द सॉइल मीन्स द एग्रीकल्चरल लेबरर और फार्म लेबरर हु कल्टिवेट ऑन द फार्म. यानी कि जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी परफॉर्म करते थे लैंड में उन्हें हम टीलर्स कहते हैं. तो ऑनर्स ऑफ द सॉइल और टीलर्स ऑफ द सॉइल दोनों के बीच एक गल्फ था. उस समय एक खाई थी, बहुत बड़ा डिफरेंस था. तो ब्रिटिश रूल के समय क्या था कि जो ऑनर्स हैं लैंड के, जो लैंड ऑनर्स हैं वो क्या करते थे, आउटपुट शेयर करते थे. डैट मीन्स जो टीलर्स थे जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी परफॉर्म करते थे तो उनके तो वो जितना भी प्रोडक्शन होता था उसके परसेंटेज जो पहले उनके बीच में तय हो जाती थी कि जितना भी प्रोडक्शन होगा उसका इतना भाग दिया जाएगा. तो इसलिए वो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो और वो क्या करते थे, आउटपुट शेयर करते थे टेलर्स के साथ. जबकि जो टेलर्स थे वो क्या चाहते थे कि सिर्फ उतना ही काम करना चाहते थे, उतना ही प्रोडक्शन चाहते थे जो कि जिससे उनकी फैमिली की जो नीड्स है वो फुलफिल हो सके. तो एक तरफ जो ऑनर्स थे वो चाहते थे ज़्यादा प्रोडक्शन हो जिससे आउटपुट ज़्यादा होगा तो क्या होगा, सरप्लस भी ज़्यादा होगा एंड ड्यू टू हाई लेवल ऑफ सरप्लस देयर इनकम ऑल्सो इंक्रीज. बट
टेलर्स जो थे वो ये नहीं चाहते थे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है स्मॉल एंड फ्रैगमेंटेड होल्डिंग। स्मॉल एंड फ्रैगमेंटेड होल्डिंग का अर्थ हुआ कि जो ज़मीन की जो साइज थी वो बहुत ही छोटी छोटी थी, जिसके कारण जो आउटपुट जो था वो लो होता था, क्योंकि उस पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी परफॉर्म करना बहुत ही मुश्किल था और ये कॉस्ट भी ज़्यादा लगता था उसमें। नेक्स्ट जो है वो है लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर द ब्रिटिश राज। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया इंट्रोड्यूस्ड अ यूनिक सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू. It set up a triangular relationship among the government, the owner of the soil, and the tiller of the soil. This was popularly known as जमींदारी सिस्टम. तो इन्हें जमींदारी सिस्टम कहा गया है, यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे उन्होंने जो यूनिक सिस्टम लगाया था लैंड रेवेन्यू का, उसके बीच एक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप था गवर्नमेंट के साथ। और इस तरह से ये जो सिस्टम थे उसमें जमींदारी सिस्टम जो थी वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। और जो मेन फीचर्स थे इस तरह के सिस्टम के थे, जमींदारी सिस्टम के थे, वो ये थे द जमींदार्स वेर रिकॉग्नाइज्ड एज परमानेंट ऑनर ऑफ द सॉइल। यानी जमींदार जो थे वो किसी भी ज़मीन के परमानेंट ऑनर जो थे वो रिकॉग्नाइज किए गए थे। द जमींदार्स वेर टू पे अ फिक्स सम ऑफ गवर्नमेंट एज लैंड रेवेन्यू। उन्हें एक फिक्स पेमेंट फिक्स किया गया था जो कि लैंड रेवेन्यू के फॉर्म में गवर्नमेंट को देना होता था। द जमींदार्स वेर फ्री टू एक्सट्रैक्ट एज मच फ्रॉम द टीलर्स ऑफ द सॉइल एज दे कुड। जो जमींदार थे वो जो टेलर्स ऑफ द सॉइल यानी जो एक्चुअल कल्टीवेटर थे ज़मीन के, उनसे वो फ्री थे। द इम्प्लीकेशन ऑफ द लैंड रेवेन्यू सिस्टम वेयर अलार्मिंग फॉर द फार्मर एंड द फार्मिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। इट लीड टू अनलिमिटेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द टेलर्स ऑफ द सॉइल बाय द जमींदार्स। तो जिसके कारण क्या था, जो जमींदार थे वो टेलर को बहुत ही एक्सप्लॉइट करते थे। Rates of the land revenue were frequently raised by the zamindars, which led to frequent eviction of the tillers of the soil. जो लैंड रेवेन्यू का जो रेट था वो जमींदार के द्वारा बढ़ा दिया जाता था। टीलर्स वे रिड्यूस टू स्टेटस ऑफ लैंडलेस लेबरर्स। जो टीलर्स थे उनका जो स्टेटस था वो लैंडलेस लेबरर के जैसा ही हो गया था। Backwardness of tillers mean that they had no means and little interest in improving agriculture। और जिसके कारण क्या था, जो टेलर्स थे उनका इंटरेस्ट नहीं था एग्रीकल्चर एक्टिविटी को डेवलप करने का, यानी उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करने की उनकी कोई भी प्लानिंग नहीं होती थी, इंटरेस्ट उनका नहीं होता था। नेक्स्ट वन इज फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। आपको पहले ही बताया गया है कि जो ब्रिटिशर्स थे वे हमेशा एग्रीकल्चर की कमर्शियलाइजेशन पर ज़्यादा जोर देते थे, क्योंकि जो कमर्शियल क्रॉप्स का वो प्रोडक्शन करवाना चाहते थे, जिनका यूज़ वो क्या करते थे, रॉ मटेरियल के रूप में अपने देशों के इंडस्ट्रीज में वो करते थे। और इस तरह से उन्हें बहुत ही सस्ते में रॉ मटेरियल्स मिल जाता था, जिसके कारण उन्हें बहुत ही फ़ायदा होता था। तो इस तरह से जो फार्मर्स थे उनको फोर्स किया जाता था टू शिफ्ट टू कमर्शियल क्रॉप्स, जैसे कि इंडिगो हो गया, है ना, इस तरह से जूट हो गया, इन सभी चीज़ों को वो उन्हें जो सब्सिस्टेंस क्रॉप्स है जैसे है राइस, व्हीट, इन सबको इनका प्रोडक्शन मोस्टली करने के लिए मना किया जाता था। और इस तरह से जो
एग्रीकल्चर क्रॉप्स यानी कि जो क्रॉप्स थी जिसको हम फूड ग्रेन्स कह सकते हैं, तो उनकी क्वांटिटी जो थी, उनका प्रोडक्शन हमारे यहाँ कम होने लगा। केवल वो अपने कंजम्पशन लेवल के लिए जितना चाहिए उतना ही फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन करते थे। तो इस तरह से आप देखें कि जो एग्रीकल्चर की स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी, और ये बैकवर्डनेस, ड्यू टू द फीचर ऑफ बैकवर्डनेस, the production is low and the productivity of soil is also low. ये जो प्रोडक्शन बहुत धीमी गति से जो होता था, दिस इज ऑल्सो नोन एज स्टैग्नेंट नेचर ऑफ एग्रीकल्चर। तो इस तरह से आज आपको जो बताई गई बातें, I think it may be helpful to you to understand the condition of agriculture activity on the eve of independence. Thank you.